I'm sure most of us know about the exact details so as to what really has happened in Afghanistan, right? But how many of us really understand the situation that has unfolded in Meghalaya? Hello everybody, I am Dikshant, and in today's video I am going to talk about Meghalaya violence, what really has happened there, why has the Home Minister of the state resigned, why was there curfew in place, why were the mobile services banned. All of this we are going to discuss in this particular video, so make sure that you watch this video till the end. But before going into details, let us look at some of the important headlines which were seen in the newspapers. Meghalaya Home Minister Lakshman Rumbi resigns after violence erupts over killing of former militants. CRPF vehicle was attacked in Meghalaya capital amid curfew. Meghalaya BJP condoles the death of former HNLC leader Chesterfield. Thank you. So some people definitely we are going to talk about. Some people are important. There is an organization which is important for all of us to understand. For example, Home Minister Lakshman Rumbi has resigned after this entire episode. CM of Meghalaya, Conrad Sangma, somebody whose entire family is quite influential in the Meghalaya politics. Also, they are talking about this particular organization called HNLC and a leader, Chesterfield. Thank you. So let me now try to tell you the exact timeline. क्या चीजें unfold हुई, what really has happened and what has led to this situation where the Home Minister had to resign, where people were attacking CRPF, where people were attacking the home of CM and they were also attacking the governor's convoy. So ऐसा क्या हुआ है? Let us try to unfold or let us try to unravel this entire story, right? So let us look at the timeline. Obviously there are two perspectives. So एक government का perspective है and there is a perspective from the supporters of Chesterfield. Thank you. So this particular guy, Chesterfield, thank you, was a leader of HNLC, an important man as far as HNLC is concerned, and recently he was killed in retaliatory firing. So हुआ क्या है? The government sources say कि पुलिस रेड के लिए उनके घर पे जाती है and रेड के दौरान रेड कैरी आउट करते करते ही Chesterfield, thank you, he started retaliating and he started using a knife, right? In that process the fight began and in retaliation then the police forces also started firing and उस firing के उस पूरे किस्से में he lost his life and he was killed in his home in Shillong. So this is what the episode is as far as the police personals are concerned, as far as the government of Meghalaya is concerned. But on the other hand, the supporters of Chesterfield, thank you, they say that this was nothing but a cold-blooded murder, this was nothing but a fake encounter, right? अब इसके बाद जैसे ही ये सारी चीजें होती हैं 15th of August को, 15th of August, there is a funeral which is organized and in that particular funeral it is seen that there are many supporters of Chesterfield, thank you, that are gathered there and उस gathering के बाद वहां पर protesters जो हैं they start retaliating and उसके बाद वो angry protesters फिर क्या करते हैं, they go to the chief minister's personal residence and they started throwing petrol bombs at his residence. But the good point is that the CM of that state was living in his official residence, so no casualties as such were reported. Immediately इस episode के बाद Lakshman Rumbi ने अपना resignation दे दिया, who was the home minister of this particular state Meghalaya. But अभी तक फिलहाल CM ने इनका resignation जो है accept नहीं किया है, right? It might so happen soon. इसके अलावा भी there were many incidents which were reported as far as violence is concerned. मेघालय गवर्नर के जो हैं सत्यपाल मलिक, उनके कॉन्वॉय पे भी अटैक किया गया while he was returning from Guwahati airport. This particular video also went viral on the social media where you could see some people who had abducted police vehicle and बाद में इसको ले जाकर इसको आग भी लगा दी गई. It was destroyed also later. ये सब देखते हुए all of this was when this all was happening at the same time, Lakshman Rumbi stepped down and he said that I want a proper judicial probe to be in place. एक proper judicial probe होनी चाहिए, वहां पर role of police जो है उसको भी investigate करना चाहिए, पूरे केस को अच्छे से investigate करना चाहिए. And क्योंकि I want this particular investigation to be fair, उन्होंने immediately अपनी पोजीशन से step down कर दिया. But उसके बाद चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा ने एक पर्टिकुलर पीस कमेटी बनाने की बात करी जिसमें उन्होंने बोला वी विल हैव सपोर्टर्स ऑफ द फॉर्मर लीडर, राइट? उनको भी इंक्लूड करेंगे. देयर विल बी सम पुलिस पर्सोनल्स इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर कमेटी एंड टुगेदर वी विल देन वर्क to find out what really has happened and how this situation has unfolded. But अभी फिलहाल
ये जो कमिटी है इसको अपोज कर रहे हैं जो सपोर्टर्स हैं चेस्टरफील्ड थैंक यू के, एंड दे से जब तक टॉप ऑफिशियल्स आप सस्पेंड नहीं करोगे उस एरिया के, तब तक जो भी इन्वॉल्व थे इस ऑपरेशन के अंदर उनको आप सस्पेंड नहीं करोगे, तब तक हम इस पीस कमिटी के मेंबर नहीं बनेंगे, राइट? एंड नथिंग, वी विल बी नॉट गिविंग यू एनी सपोर्ट. नाउ व्हिच एरियाज ऑफ मेघालय आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस? बेसिक 4 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अफेक्ट हुई हैं. इफ आई टॉक अबाउट द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट इट इज ईस्ट खासी हिल्स. इसके अलावा रीभोई एक एरिया है, वेस्ट खासी हिल्स एक एरिया है, साउथ वेस्ट खासी हिल्स. तो ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स आप यहां पर देख रहे हो, दीज आर द मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स एज फार एज दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड. जो कर्फ्यू है वो भी इन्हीं एरियाज में लगाया गया है, जो मोबाइल सर्विसेज को बैन किया गया है वो भी इन्हीं एरियाज में बैन किया गया है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है HNLC ये क्या चीज है, एंड चेस्टरफील्ड थैंक यू के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं. नाउ चेस्टरफील्ड थैंक यू ऑब्वियसली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ HNLC, somebody who was living in India till 2004 and then shifted his base to Bangladesh. 2018 में just a few years back he came back from Bangladesh and he surrendered because HNLC को अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत इंडिया में एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन या एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया गया था. एंड इसकी वजह से 2018 में HNLC के जो लीडर हैं चेस्टरफील्ड थैंक यू, ही कम्स बैक टू इंडिया एंड ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक इंटरलॉक्यूटर का काम करना शुरू कर देते हैं. सो ही बिकम्स काइंड ऑफ अ मिडलमैन जस्ट टू प्रमोट पीस, राइट? एंड हिज फैमिली मेंबर्स नाउ आर आल्सो सेइंग दैट ही वाज ऑलमोस्ट 57 इयर्स ओल्ड एंड ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने फर्स्ट सबसे पहला अटैक जो है चेस्टरफील्ड थैंक यू ने किया होगा. ऐसा नहीं हो सकता. डेफिनेटली पुलिस पर्सोनल्स की ही यहां पर कोई गलती रही होगी. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड HNLC है क्या चीज, राइट? So, if I talk about Meghalaya, there are 3 important tribes, Kharo, Garo, Khasi and Jaintia. तो एक टाइम था जब यहाँ पे ये तीनों जो ट्राइब्स थी ये तीनों ही प्रोटेस्ट कर रही थी अगेंस्ट दी डोमिनेशन ऑफ आउटसाइडर्स. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये काफी बिहेवियर देखा जाता है. इफ आई ऑल्सो टॉक अबाउट असम, वहां पे भी आपको सिमिलर जो है वो बिहेवियर दिखेगा जहां पे आउटसाइडर्स से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज मोस्टली दीज आर ट्राइबल पीपल एंड इनका जो वे ऑफ लाइफ होता है, इनके जो ट्रेडिशंस होते हैं, दे वांट देम टू बी प्रोटेक्टेड. एंड व्हेन एवर देयर इज एन इन्फ्लक्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, तो इनके इनके जो नेचुरल फैब्रिक है वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है. सो दे नेवर सपोर्ट आउटसाइडर्स, राइट? तो ये जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये तीनों ट्राइब्स मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेती हैं जिसको ये बोलती हैं HALC. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दे ट्राई टू फ्री मेघालय फ्रॉम दी डोमिनेशन ऑफ आउटसाइडर्स. नाउ ये जो तीनों ट्राइब्स हैं मिलकर HALC बना लेती हैं, बट वेरी सून वी सी देयर आर इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनके कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से HALC इज देन स्प्लिट इनटू 2 ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? फॉर एग्जांपल जो गारो ट्राइब है ये अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है जिसको बोला जाता है आमला, विच इज नथिंग बट अचिक मातग्रिक लिबरेशन आर्मी, आमला, राइट? एंड ये जो खासी और जैंतिया है, ये जो ट्राइब है ये अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है जिसका नाम बन जाता है HNLC, विच इज नथिंग बट हेंट्रिप नेशनल लिबरेशन काउंसिल और लिबरेशन काउंसिल, जो कि सेटअप होता है 1993 में. सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी न्यू फॉर ऑल ऑफ अस और वेरी न्यू एज फार एज नॉर्थ ईस्ट इज कंसर्न्ड. ये काफी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है. बट इफ आई टॉक अबाउट द सिचुएशन टुडे, मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ HNLC दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम ढाका. तो इनको सेफ हेवंस जो है ढाका में मिल चुके हैं, क्योंकि दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर्ड टू बी अनलॉफुल और दे आर बैंड ऑर्गेनाइजेशंस एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड. नाउ बैन क्यों किया गया इन ऑर्गेनाइजेशंस को, इनके पीछे बहुत सारी एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट देती है. एंड स्टेट गवर्नमेंट और मेघालय की जो पुलिस है वो बोलती है कि these people have been involved in a lot of illegal activities. What kind of illegal activities? Killing, abduction, robbery, arms smuggling, cattle smuggling, extortion. ये सारी तो रेगुलर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की चीजें हैं जिसमें HNLC इन्वॉल्व है, as far as the information shared by the state government and the Meghalaya police. Apart from that, ये लोग बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि they have also been accused of circulating FICNs in the state. फेक इंडियन करेंसी नोट्स को भी सर्कुलेट करने में ये लोग काफी ज्यादा काम करते हैं. दे हैव आल्सो वर्कड विद दी ISI ऑफ पाकिस्तान. सो पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है. ऑल आर द रीजंस व्हाई दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन बैंड इन इंडिया, राइट? अब ये जो HNLC ऑर्गेनाइजेशन है, ऑन द अदर हैंड दे से दैट वी आर पीपल
who have always worked towards peace, who have always wanted to ensure that the Khasi tribes or the Jaintia tribes, live in peace, and हम society को better करने का काम करते हैं. How ये इन्होंने एक ऑपरेशन भी चालू किया था, ऑपरेशन काइलैंग, जिसको ऑपरेशन हरिकेन भी बोला जाता है. एंड व्हाट दे सेड वाज दैट पीपल हु विल बी कमिटिंग रेप्स will be punished by us and we will be torturing them so that more and more people are then getting discouraged, right? ऐसा कोई भी काम दोबारा ना करे. Also, these people boycott the Indian Independence Day every single year and ये भी बोलते हैं कि हमें आउटसाइडर्स को हटाना है. जब तक गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगी तब तक हम सिविल पोल्स को भी बॉयकॉट करेंगे. तो मेघालय में कोई भी पोल्स होंगे उनको भी ये लोग जो हैं बॉयकॉट करेंगे. एंड ये बेसिकली बोलते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस को पावरलेस कर देते हैं. सो हमें नहीं चाहिए किसी भी तरह की सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट से, एंड हम अपना ही तरीके से जो है वो जिंदगी गुजारना चाहते हैं. सो दिस इज व्हाट रियली इज अबाउट HNLC. दिस इज व्हाट रियली हैज हैपेंड रिसेंटली इन मेघालय. दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज देयर अवेलेबल. अभी आगे आने वाले दिनों में क्या क्या सिचुएशन अनफोल्ड करती है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग टू keep in touch with this entire issue. So this is it from my side. Hope you gained some knowledge out of this video. For more such videos, please like, share and subscribe our channel. I will be back next week with another story. Till then, take care and bye-bye.